is the 6th day of our bootcamp. We're hitting a sixer on our Android development bootcamp today. And I'm so happy that we all have you on this journey with us. The agenda for today is Android app low-code databases using SQLite databases. You all know this as you've already read the agendas, but you also know the drill, but I'm going to mention it again. You have to RSVP for each event before attending and for the quiz. It's a mandatory statement. The quiz's link will be given at the end, and you know how that process works as well. So my name is Muntaha Naeem. As I said before, I am a software engineering student. I study in second year, currently at MUTE. Okay? The speaker for today, I'm actually very excited about this, is Mr. Muzammil Nawaz. He is a final year student of Mehran University Engineering and Technology. He has actually been working as a freelance developer for 2 years now, and he's quite skilled at it. The other thing that he is actually very skilled at is Android development, and so that's why we asked him for this event today. After such a success, after having him in our object-oriented programming seminar, it was such a success, and we are so happy that he can join us again and share his talents with us. Over to you, Muzammil. Thank you, Muntaha, for the wonderful introduction. So now I'm gonna share my screen. Please confirm if it is shared. Yes, it's all clear. Okay, so are the slides visible? Muntaha, are the slides visible? No, the thing is not visible, actually. Sorry. Okay, let me do it again. I can't see the screen. So is it visible now? I don't know if it's, yes, it's visible now. Yeah, I got it. You're all Okay, good? everyone, thank you so much for coming. Yeah, so let us start without wasting any second. So today's our topic of the webinar is Android local databases. So by local databases, we mean like any data storage platform which is locally available on any smartphone which we are using, or on the device on which any application we are using that, and if it has any default local database, then it will be considered that devices, that phone's local database. So basically, uh, for any kind of data storage on Android, there are several options available for us. So यहाँ पर हमें जो है, आप जैसे कि देख सकते हैं कि डिफरेंट चीज़ें बताई गई हैं कि किस किस वे से हम अपनी डेटा या जो अपना स्टोरेज का काम है वो हम ले सकते हैं. So basically, Android provides several options for you to save your app data. The solution you choose depends on your specific needs, such as how much space your data requires and what kind of data you need to store. So basically, यहाँ पर आपका जो डेटा है, जो आप अपनी एप्लीकेशन से मुतालिक जो सेव करना चाह रहे हैं अपने डेटाबेस में, वो किस तरह का है और उसकी आपको कितनी साइज का डेटा है, उस पर डिपेंड करता है कि आप इनमें से कौन सा वे जो है वो चूज करेंगे. So first of all, there is internal file storage, which is any store app private files which have any application has just some like it's supporting files, so which are also just stored on the local internal storage of the phone within the application. So this is one way of storing any application's data. Then there is external file storage, like we have some memory cards or flash drives connected to our device, and we just share our application data with those sources. So this can also referred as external file storage or any external availabilities on our device. Then there comes the shared preferences. For example, I think here the better example for the shared preferences would be like Google Drive or something, which is not actually on your phone or device, available on your device, but it is shared version which is also available to the system provider and also available to on your site, which is a user site. And then there comes databases, which we will be discussing today. So databases can be used for storing
structured data in a private database. So from private database हमें ये पता चलता है कि private database मतलब कि वो सिर्फ आपकी करंट एप्लीकेशन जो कि आप यूज करना चाह रहे हैं सिर्फ उसी से कनेक्टेड होगा और सिर्फ उसी एप्लीकेशन को उस डेटाबेस को यूज करने का जो है परमिशन या उसका एक्सेस जो है सिर्फ उसी आपकी करंट एप्लीकेशन को ही होगा. So except for some types of files on external storage, all these options are intended for a private data. The data is not naturally accessible to other apps. Just like I said, कि जो भी आपकी ऐप जो इंटरेक्शन में है और जिस ऐप से वो डेटाबेस कनेक्टेड है आपकी सिर्फ वही एप्लीकेशन उसके डेटाबेस को यूज करने के लिए काबिल होगी. So basically we have one option SQLite. So where you can use SQLite like any project that requires any type of data storage or like database need यानी कि कोई भी आपकी ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पे आपको बेसिक लेवल पे डेटा स्टोरेज की जरूरत है या जहाँ पे आपको एक सिंपल डेटा जो है उसकी स्टोरेज की जरूरत है तो वहाँ पे आप SQLite का जो है वो यूज कर सकते हैं अच्छे तरीके से. So here is some details about SQLite. Like SQLite is very lightweight, open source, relational database that comes with Android OS. तो बेसिकली पहली हमारे पास ये चीज़ ये है कि SQLite जो है आपके डिवाइस में या एंड्रॉयड डिवाइस जो भी आप लेते हैं जो भी स्मार्टफोन आप लेते हैं वहाँ पे बाय डिफॉल्ट उस पर इंस्टॉल होता है. आपको कोई एक्सटर्नल डेटाबेस का कोई वर्जन या डेटाबेस की कोई एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती. तो ये आपके एंड्रॉयड OS के साथ ही जो है वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल आता है और इट इज़ अ लाइट वेट कि इसका मतलब है कि आपका ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर जो है वो यूज नहीं करता और देन इट इज ओपन सोर्स. जैसे कि एंड्रॉयड खुद भी ओपन सोर्स है तो वहाँ पे हमारा जो उससे कनेक्टेड जो उसका फीचर है SQLite का या एंड्रॉयड डेटाबेस का तो वो भी हमारा यहाँ पे एज ए ओपन सोर्स है यूज होता है. और बाय रिलेशनल डेटाबेस हमारा मतलब कि दिस डेटाबेस ओनली वर्क्स विद द टेबल्स एंड रोज एंड कॉलम्स. जैसे कि अगर आपको पहले किसी भी SQL डेटाबेस का या रिलेशनल डेटाबेस का पता हो जैसे कि MySQL या Oracle तो वहाँ पे हम रिलेशनल डेटाबेसेस के यही टाइप हैं कि उनमें जो है जो बेसिकली काम होता है वो टेबल स्ट्रक्चर्स में होता है. तो रिलेशनल डेटाबेस यानी कि हमारा जो SQLite है वो भी एक रिलेशनल डेटाबेस है. उस पर भी जो बैकएंड पे काम जो हो रहा है वो हमारी टेबल्स पे और उसमें जो कॉलम्स और रोज पे हो रहा है. तो उसके बाद इन एंड्रॉयड integrating SQLite is a tedious task as it needs writing a lot of boilerplate code to store simple data. तो हमारे पास एंड्रॉयड में लेकिन बेसिक जो SQLite के साथ मसला हमारे साथ ये आता है कि सिंपल सी चीज़ करने के लिए भी हमें जो SQL का जो boilerplate कोड यानी कि ऐसा कोड जो कि हमें ज़रूरी ही लिखना पड़ता है जिसकी हालांकि इतनी कोई एफिशिएंसी तो नहीं है लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जो कंडीशंस की ज़रूरियात के मुताबिक हमें वो लाजमी तौर पे लिखना पड़ता है. तो ये हमारे पास SQLite को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास एक ज़रूरी चीज़ आ जाती है. उसके बाद कंसिडर SQLite में जो है ऐप नीड्स टू स्टोर सिंपल एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा ऑब्जेक्ट्स. और जब भी आपके पास कोई सिंपल टाइप की डेटा या बेसिक स्टोरेज जो है वो आपको अपने डिवाइस या अपनी एप्लीकेशन के लिए चाहिए होती है तो वहाँ पे आप SQLite यूज़ करने के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं. उसके बाद अल्टरनेटिवली देयर इज रूम पर्सिस्टेंट लाइब्रेरी which could be used for better APIs and easier integration. तो यहाँ पर हमें एक RPL which can be called as room persistent library वो हमारे पास यहाँ पे प्रोवाइड की गई है कि वो हमें एक एक्सेस देती है कि हम अपना जो डेटा स्टोरेज या जो SQLite के साथ जो हमारा कम्युनिकेशन है उसको आसान बना सकें और उसके कुछ चैलेंजेस हैं जिनको वो हमें इजीली सॉल्व करके और एक इजी इंटरेक्शन विद द डेटाबेस जो है वो उसकी अवेलेबिलिटी पैदा करती है. तो हर चीज़ के साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं. वैसे ही SQLite की जो अपनी परफॉर्मेंस और उसके जो भी फ़ायदे हैं उनके साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं जो कि हमें यहाँ पे फेस करने पड़ते हैं. जैसे कि हमने पहले ये पढ़ा कि हमें SQLite की कोई बेसिक क्यूरी या बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए भी बॉयलरप्लेट कोड यानी कि जो अननेसेसरी कोड जो है वो लिखना पड़ता है. यानी किसी भी सिंपल जावा डेटा ऑब्जेक्ट पे क्यूरीज परफॉर्म करने के लिए या उसको स्टोर करने के लिए उसको रिट्रीव करने के लिए हमें जो है बॉयलरप्लेट कोड लिखना पड़ता है. उसके बाद आपके पास दूसरा मसला ये आता है कि डेटाबेस ऑपरेशंस ऑन द मेन थ्रेड. ये बात आप अगर थोड़ा गौर से सुन लें तो दिस विल बी अ बेटर पॉइंट कि आपके पास एंड्रॉयड में जो है आपकी एक मेन थ्रेड होती है जो कि आपके पास किसी भी एप्लीकेशन का जो आप एज ए यूज़र जो व्यू देख रहे हैं जो कि लेआउट उसका देख रहे हैं जो उसकी जो UI होती है जो कि आप जिस पे क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं उसको. तो
वो जो है वो आपकी मेन थ्रेड पे चल रही होती है। और डेटाबेस के ऑपरेशंस लाइक कभी कभी आपके पास अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो उसको रिट्रीव करने के लिए या उसको इंसर्ट करने के लिए भी आपके पास जो है प्रोसेसिंग पावर चाहिए होता है। तो अगर आप अपने वो सारे एंड्रॉयड के जो ऑपरेशंस हैं वो अगर आप अपने मेन थ्रेड पे चलाएंगे तो आपका जो एंड्रॉयड का एप्लीकेशन है वो आपका हैंग भी हो सकता है और वो जो है अनएक्सेसिबल भी हो सकता है बीच में। तो ये हमारे पास चैलेंज आता है कि हम अपने जो एसक्यूएल या जो डेटाबेस के जो ऑपरेशंस हैं वो हम मेन थ्रेड पे भी नहीं कर सकते, क्योंकि डेटाबेस का जैसा कि मैंने कहा कि कभी भी ऑपरेशन किसी भी कितना भी टाइम ले सकता है, हम उस चीज़ से पहले वाकिफ नहीं होते। तो जो एंड्रॉयड स्टूडियो है या जो एंड्रॉयड का ओएस है वो हमें कोई भी डेटाबेस का या स्टोरेज का जो ऑपरेशन है वो हमें अपनी मेन थ्रेड पे परफॉर्म करने के लिए इजाज़त नहीं देता। तो उसके लिए हमें दूसरी थ्रेड्स जो है वो बनानी पड़ती हैं, जो कि हमारा डेटाबेस के ऑपरेशन जो है वो बैकएंड पे एप्लीकेशन के बैकएंड पे कर रही होती हैं, चला रही होती हैं, जो कि हमारे एप्लीकेशन के व्यू को पता नहीं चलता है, उस पर जो है कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। सो देन देयर कम्स unmaintainable code. As a schema changes, you need to update the affected SQL queries manually. तो यहाँ पर दूसरा चैलेंज हमारे पास ये है कि आपका कोड जो है वो बिल्कुल ही मैनुअल हो जाता है और उसे मेंटेन करना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो भी डेटाबेस की क्यूरीज हैं, भले ही वो इंसर्शन की क्यूरीज हों, डिलीशन की क्यूरीज हों, या हमारे पास किसी डेटा को रिट्रीव करने की क्यूरीज हों, लेकिन उस क्यूरी को हम मैन्युअली लिखते हैं। तो अगर कल को हमारा टेबल का स्ट्रक्चर जो है या स्कीमा जो है वो चेंज हो जाता है तो हमें उसके लिए उन क्यूरीज का भी ख्याल करना पड़ेगा और फिर उनको भी मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमारा एसक्यूएल का वन ऑफ द बिगर चैलेंजेस भी है। उसके बाद देन कम्स के एसक्यूएल क्यूरीज चेक एट रन टाइम, नो कंपाइल टाइम वेरिफिकेशन ऑफ एसक्यूएल क्यूरीज। फॉर एग्जाम्पल आपने क्यूरी एक लिख दी अपनी एप्लीकेशन में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो वहाँ पे आपको जो आपका जो आईडी है, भले ही वो आप एंड्रॉइड स्टूडियो में चला रहे हों या किसी और में, तो वो आपको कंपाइल टाइम पे लिखते वक्त ये नहीं बता सकता कि आपने जो वो क्यूरी है वो सही लिखी है या गलत लिखी है, तब तक कि आप उसको चला के नहीं देखते। और रन टाइम पे जब वो क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो अगर उसमें कोई मसला या प्रॉब्लम होगा तो वो रन टाइम पे आपको प्रॉब्लम बताएगा कि भाई हाँ, ये आपकी क्यूरी जो है ये गलत है, या आप यहाँ पे ऐसी कोई टेबल यूज़ करें जो कि पहले से टेबल है ही नहीं। तो ऐसे प्रॉब्लम जो है वो आपको रन टाइम पे एसक्यूएल जो है वो नहीं बता सकता। यह उसका एक वन ऑफ द चैलेंजेस है और ड्रॉबैक्स है। और यहाँ पे हम कंपाइल टाइम पे यानी कि अपना एरर जो है, अपनी गलती जो है वो चेक नहीं कर सकते। उस गलती को रियलाइज करने के लिए हमें एप्लीकेशन को रन करना और उसे रन टाइम पे टेस्ट करना ज़रूरी है। और देन देयर कम्स अनटेस्टेबल कोड, जैसे कि हमारा पहले मैंने बताया कि जो कोड है जो सारा वो मैन्युअली क्यूरीज पे काम कर रहा होता है, यानी पे उसकी कोई ऑटोमेटिक इंटीग्रेशन या कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती, तो उसको टेस्ट करना भी उस हिसाब से मुश्किल हो जाता है। सो these were the few challenges which will come with the SQLite integration और implementation. So अगर इन challenges को कुछ सॉल्व करना हो या इनको कुछ आसान करना हो तो हमें SQLite की तरफ से और एंड्रॉयड की तरफ से एक लाइब्रेरी फराहम की गई है जिसको हम कह सकते हैं कि रूम पर्सिस्टेंट लाइब्रेरी। तो बेसिकली जो ऊपर हमने चैलेंजेस पढ़े उनको ओवरकम करने के लिए हमारे पास ये एक वन ऑफ द फीचर्स है जो कि हम अपना इम्प्लीमेंट करेंगे भी और देखेंगे भी कैसे इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसके साथ हम यानी कि एसक्यूएल के जो ऑपरेशन है वो भी परफॉर्म कर पाएंगे और ऊपर वाले जो चैलेंजेस थे उनसे भी हम थोड़ा बहुत फेस कर लेंगे, उनको जो है सॉल्व कर लेंगे। तो व्हाट इज रूम पर्सिस्टेंट लाइब्रेरी? रूम इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑन टॉप ऑफ एसक्यूएल डेटाबेस। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब कि दिस इज अ बेसिक कवर ऑन योर एसक्यूएल डेटाबेस। यानी कि रूम जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन या जो आपका एप्लीकेशन का जो कोड बेस होता है वो डायरेक्टली डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा होता, बल्कि वो रूम के साथ कम्युनिकेट करेगा और रूम जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा आपके बैकएंड के एसक्यूएल टेबल्स एंड डेटाबेस के साथ। सो इट्स पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स बाय गूगल। तो देयर आर फ्यू आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स जो कि हमें गूगल की तरफ से फराहम किए गए हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए, जो कि हमारी एंड्रॉयड डेवलपमेंट को आसान बनाते हैं और काफ़ी प्रॉब्लम से जो कॉमन प्रॉब्लम हैं जो कि डेवलपर्स को आती हैं किसी भी डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उनको उनसे बचने के लिए हमें जो है आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हमारे पास जो रूम पर्सन लाइब्रेरी में जो रूम है कंपोनेंट, तो वो आर्किटेक्चर कंपोनेंट का एक हिस्सा है या उसका एक वन ऑफ द कंपोनेंट्स है। तो बेसिकली रूम enables you to easily work SQL databases, work with SQLite databases in Android। तो रूम आपका जो है वो SQL databases के जो ऑपरेशन होते हैं एंड्रॉइड पे या किसी भी एप्लीकेशन पे उसको आसान कर देता है, उसको अलाउ कर देता है।
So the room person library acts as a layer that abstracts raw SQLite and lets you make use of robust database access while keep you close to the SQLite. So it doesn't get in the way when you want to access low-level features of SQLite. तो रूम पर्सन या RPL जो हमारी है वो हमें एक फीचर परफॉर्म करती है कि वो आपका लाइक एक बीच के या मिडिल लेयर के तरह काम करता है कि वो ना ही आपके डायरेक्टली SQLite से कनेक्टेड होगा, ना ही डायरेक्टली जो है वो आपकी अपर लेयर एप्लीकेशन लेयर पे होगा, यानी कि वो दोनों के बीच में एक काम करेगा। जो वहाँ से आप अगर आपको डेटाबेस से रिट्रीव करना है तो वो भी आपको रूम की मदद से मिल जाएगा, और अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना चाह रही है तो वो भी हम रूम की मदद से जो है वो कर सकते हैं। तो दिस इज बेसिक entities which components which comes with the RPL or room person library. There is one database component, then there is model or aka entity which can be termed as also table in the database, or then here comes a DAO or DAO, which is data access object. So we'll discuss them in the next slide. So yeah, so there are three major components in room. First one is database, which contains the database holder and serves as a main access point in the underlying connection to your app's persisted relational data. तो डेटाबेस का जो आपका कंपोनेंट है RPL में, रूम पर्सन लाइब्रेरी में, तो बेसिकली वो जो है बेसिक सारा डेटाबेस का जो फाइल है या स्ट्रक्चर है उसको मैनेज करने के लिए आपका ये जो कंपोनेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आपका जो अंडरलाइंग जो डेटाबेस का या जो आपके स्टोरेज का जो लेयर होता है उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, उसकी जो स्कीमा हो गई, उसकी जो स्ट्रक्चर हो गया कि उसमें किस किस्म की डेटा होगी वगैरह वगैरह, ये सारा आपका डेटाबेस जो है वो मैनेज करेगा या हैंडल करेगा। और देन देयर कम्स एंटिटी और व्हिच रिप्रेजेंट्स अ टेबल विद इन द डेटाबेस। तो अगर आपने पहले डेटाबेसेस के साथ, रिलेशनल डेटाबेस के साथ काम किया हो कि उनमें भले ही वो माइस्क्यूएल हो या आपका ओरेकल हो, तो उनमें आपने देखा होगा किसी डेटाबेस में काम करने के लिए आपको पहले टेबल्स बनाना पड़ते हैं। तो उन टेबल्स में फिर आप डेटा स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे आप यानी कि अपने डेटाबेस को बताने के लिए क्या आप यहाँ पर क्या चीज़ें या कौन सी चीज़ें जो है वो स्टोर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप जो है वो एंटिटी बनाएंगे। तो उस एंटिटी में आपको सारी उस टेबल की डेटा बतानी पड़ती है कि आप कौन सी टेबल जो है उसका नाम क्या होगा, उसमें टेबल में किस टाइप की जो है या किस ऑब्जेक्ट्स की डेटा जो है वो स्टोर होगी। तो ये बेसिकली एंटिटी जो है वो आपके डेटाबेस की किसी भी एक टेबल को जो है वो रेफर करती है या उसको जो है वो इंडिकेट करती है। तो उसके बाद जो है हमारे पास आता है वो है डाओ, व्हिच कंटेन्स द मेथड्स यूज्ड फॉर एक्सेसिंग द डेटाबेस। सो यहाँ पर जो डाओ है वो हमारा इंटरफेस है, जो कि बेसिकली उसमें सारे कुछ मेथड्स होते हैं, भले ही वो हमारी डेटा को रिट्रीव करने के मेथड्स हों, इंसर्ट करने के मेथड्स हों, या फिर उसको किसी भी डेटा को अपडेट या डिलीट करने के मेथड्स हों, वो सारे हमारे जो हैं वो डाओ में या डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट में जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो ये बेसिक तीन कंपोनेंट्स है जो कि हमारे पास RPL या रूम पर्सन लाइब्रेरी के साथ आते हैं। और फिर से मैं रिपीट करता चलूँ कि रूम पर्सन लाइब्रेरी आपके पास एक बीच का फीचर है जो कि आपको डेटाबेस के साथ और एप्लीकेशन दोनों के साथ जो है वो कम्युनिकेट करने की एक सहूलत जो है वो फराहम करता है। तो आई वुड लाइक कि अभी तक अगर कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चंस हैं तो आप जो है वो अभी पूछ सकते हैं, या अगर कोई क्वेश्चन चैट में आए तो प्लीज लेट मी नो। मुंतहा अर्जा। Yes, I'm here. I think there are some questions in the chat if you want to see them. Hello? Okay. Okay, so I don't know which user, but I think someone asked कि क्या ऐसे डेटाबेसेस हैं जो कि आपको कंपाइल टाइम पे हमें बता सकें कि रिगार्डिंग एरर्स। तो बेसिकली देखें, ये चीज़ आपका डेटाबेसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो आपको आपकी क्यूरी लिखते वक्त आपको एरर का बताएं या किसी चीज़ का बताएं। लेकिन आई एम नॉट श्योर, बट यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसी एक्सटेंशन या कुछ ऐसी लाइब्रेरीज हो सकती हैं जो कि आपकी क्यूरी के स्ट्रक्चर को कंपाइल टाइम पे चेक करें, और मे भी आपको उस एरर का जो है वो इंटीग्रेशन दें कि भाई आपकी जो क्यूरी है
वो आपकी सही है या गलत है, तो उस हिसाब से। लेकिन अभी तक आई एम नॉट फेमिलियर विथ कि अगर ऐसा कोई डेटाबेस है जो कि आपको कंपाइल टाइम के एरर्स का बता सकें या ना। तो yeah, Ganesha Kumari, I think. So yeah, there are other databases which we also can use, but जैसा कि शुरू में मैंने कहा कि SQLite हमारे पास जो है किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर का जो डेटा होता है कि जिसमें आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वहाँ पर हम जो है SQLite का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन आपके पास जो है आजकल ज़्यादा जो प्रोडक्शन लेवल पे या बड़ी लेवल पे जो है वो फायरबेस डेटाबेसेस और दूसरे डेटाबेसेस भी यूज़ हो रहे हैं, जो कि आपको इंशाल्लाह कल या परसों के सेशन में आपको उनको समझाया जाएगा, या कोई और स्पीकर होगा जो कि आपको उसके साथ काम करना सिखाएगा। लेकिन जो बेसिक लेवल पे अगर आपका सिंपल प्रॉब्लम्स हैं कि आपको किसी यूज़र का अगर यूज़र नेम या पासवर्ड वगैरह सेव करना है जो कि सिर्फ आपकी एप्लीकेशन में वही आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप उसके लिए सिंपल जो है SQLite या उसकी एक सिंगल टेबल का यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए आपको फायरबेस या दूसरे बड़े डेटाबेसेस की इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिक लेवल का जो यूजेज होता है, आप उसके लिए अपना SQLite का यूज़ कर सकते हैं विद कंपेयर टू अदर डेटाबेस। सो ऑफ कोर्स कंपैरिजन अगर हम फायरबेस और SQLite का करें, तो फायरबेस इज़ अ बिगर थिंग, जो कि आपको बहुत सारे फीचर्स भी फराहम करता है और वो इजी टू यूज़ है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि SQLite आपको जो है वो जो स्मॉल लेवल यूजेज होता है या छोटी सी ऐप के लिए जो ज़रा सा यूजेज होता है, डेटा जहाँ पे आपका कम यूज़ हो रहा होता है, तो वहाँ पे आपका जो SQLite है वो एक बेटर ऑप्शन होगा रेदर देन फायरबेस। सो मुज़बिल भाई तव्हां म्यूट आहियो, अनम्यूट कयो पाण खे। ओके, थैंक यू। मैं तो बात कर रहा जा रहा था, मैंने आई थिंक अनम्यूट किया। सो इट्स ओके, सो लेट्स मूव ऑन। तो नाउ वी कैन सी द वर्किंग ऑफ RPL। तो यहाँ पे हमारे पास जो RPL की जो लेयर होती है, जो कि हमने पहले भी बताया कि आपके एप्लीकेशन आप और आपके डेटाबेस के बीच का जो मिडिल लेयर होता है, वहाँ पे आपका RPL काम करता है। तो RPL आपको क्या करके दे सकता है कि वो आपके एंटिटीज जो हैं वो डेटाबेस से वो आपको वहाँ से रिट्रीव करने की भी फीचर्स फराहम करता है, और आपकी जो पहले से डेटा पड़ी हुई है, अगर आपको उसमें कोई अपडेशन करनी है या इंसर्शन करनी है, तो वो भी आपके जो है RPL जो है या रूम पर्सनल लाइब्रेरी जो है वो आपको मेथड्स फराहम करता है। और एंटिटीज जो कि हमने पहले बात की कि which रेफर टू एज अ टेबल इन द डेटाबेस, तो आपकी कौन सी टेबल बनानी है, उस टेबल में आप कौन से टाइप की डेटा रखना चाह रहे हैं, ये सारा आपका जो है वो RPL का काम होता है, जो कि आप उसके ज़रिए जो है वो आसानी से कर सकते हैं। सो डाओ, जैसे कि हमने कहा कि डाओ आपके पास एक इंटरफेस होता है जिसमें वो सारे मेथड्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, जो कि आपके डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने में काम आते हैं। तो वो आपको जो रूम डेटाबेस है वो आपको डाउ का एक इंस्टेंस या जो ऑब्जेक्ट है वो आपको दे देगा, जो कि आप आगे चल के उससे उस पर कोई भी ऑपरेशन जो है वो आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। सो नाउ अगर हम देखें कि भाई कैसे या कौन से स्टेप्स होते हैं जिसको हम यूज़ करके अपना RPL या जो SQLite का जो बेसिक फंक्शनलिटी है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो देर आर बेसिकली 4 स्टेप्स। तो नंबर 1 इज़ ऐड डिपेंडेंसीज। तो देखें RPL, जैसे कि मैंने कहा कि वो आपकी एक अलग से लाइब्रेरी है जो कि आपको कुछ फीचर्स फराहम कर रही है। तो उस लाइब्रेरी को आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं, जो कि आपको यानी कि अपने एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि उन डिपेंडेंसीज के बगैर जो रूम पर्सनल लाइब्रेरी की जो
खुद के क्लासेस हैं या खुद के जो फीचर्स हैं वो आप बगैर डिपेंडेंसी के यूज़ नहीं कर सकते। तो वो हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे आप डिपेंडेंसी जो है वो आप अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। और देन हेयर कम्स ऐड रूम एंटिटीज। रूम एंटिटीज से मुराद कि आप अपने डेटाबेस में किस किस्म की डेटा और किस किस्म की टेबल्स जो है वो रखना चाह रहे हैं, तो वो आपको जो है वो वहाँ पे बताना पड़ेगा या वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। वो हम कैसे करेंगे वो भी हम आगे देख लेंगे। और देन देयर इज एड डाउ क्लास। तो वहाँ पे आपके सारे एप्लीकेशन में स्ट्रक्चर में एक डाउ की क्लास होनी चाहिए, जो कि आपको यानी कि जिसमें जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि डाउ हमें प्रोवाइड करता है मेथड। तो डाउ की क्लास में आपके पास डिफरेंट मेथड्स होंगे जो कि आपकी डेटा के स्टोरेज के लिए और डेटा के रिट्रीवल के लिए या डेटा के लाइक अपडेशन के लिए या डिलीशन के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए आपको जो भी मेथड्स यूज होंगे वो हम उस डाउ क्लास में जो है इनिशियलाइज कराएंगे या डिक्लेयर करेंगे। और उसके बाद बिल्ड ए डेटाबेस। तो डेटाबेस जो है वो डेटाबेस की जो क्लास हम बनाएंगे अपनी एप्लीकेशन में, आप उसको यूज़ करके जो है आपकी बेसिक जो डेटाबेस इस्तेमाल करने के लिए आपको जो एक इंस्टेंस की ज़रूरत होगी या एक जो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी, तो वो हम डेटाबेस की क्लास के ज़रिए जो है वो उसको रिट्रीव करके फिर उस पर हम डिफरेंट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो या इम्पोर्टेंट नोट टू रिमेंबर, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आपका जो एंड्रॉयड स्टूडियो है या जो आपकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो आपकी डेटाबेस के ऑपरेशन परफॉर्म करने पे फ्रीज हो सकती है या हैंग हो सकती है। तो इसके लिए आपके पास मेन चीज़ ये है कि जब भी आप किसी भी डेटाबेस के ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाह रहे हो, तो आपको जो है वो आपकी एप्लीकेशन की जो मेन थ्रेड है आप उस पर नहीं करें बिल्कुल, बल्कि डेटाबेस के ऑपरेशंस के लिए आपको एक अलग थ्रेड या मल्टी थ्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है एंड्रॉयड में, उसको आप आई सपोज कि आपने पहले बूट कैम्प में वो पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी कोड में दिखा दूंगा। तो आप उसको यूज़ करके आप उसको जो बैकएंड की थ्रेड जो है आप उसको उसमें जो है अपने डेटाबेसेस के ऑपरेशन परफॉर्म कराएं, ताकि उसका जो है इफेक्ट आपकी एप्लीकेशन में डायरेक्टली ना हो और आपकी एप्लीकेशन जो है वो फ्रीज ना हो। सो देन दीज आर द डिपेंडेंसीज जो कि मैंने बताई कि आपको आरपीएल या आरपीएल के जो फीचर्स हैं या जो उसकी क्लासेस हैं उनको यूज़ करने के लिए जो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपेंडेंसीज। तो ये आप सब जाके जो आपके प्रोजेक्ट का जो एनुअल प्रोजेक्ट का जो ग्रेडल है बिल्ड डॉट ग्रेडल, आप उसमें ये डिपेंडेंसी जो है वो डाल के उसके बाद आप सिंक करेंगे, तो आपके पास वो ऑटोमेटिकली सारी आरपीएल की जो फाइल्स हैं जो डिपेंडेंसीज हैं वो सारी लोड कर लेगा और उसके बाद आप आसानी से आरपीएल को जो है वो अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। सो एडिंग रूम एंटिटीज विच इज आई थिंक स्टेप नंबर 2। तो रूम एंटिटीज आप देख सकते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जहाँ पे आपको किसी सिंपल टास्क की जो डेटा है वो स्टोर करनी है। तो यहाँ पे आपने देखा कि पब्लिक क्लास टास्क, वो सिंपली हम जैसे जावा में कोई भी क्लास बना सकते हैं, तो हमने वही क्लास बना ली, लेकिन इसके ऊपर आप जो यहाँ पे एंटिटी का जो एक वर्ड देख रहे हैं ये हमारी एनोटेशन है। तो ये एनोटेशन हमें क्या बता रही है कि ये जो है हमारी टास्क की जो क्लास है ये हमारे डेटाबेस में एज ए टेबल जो है वो रेफर होगी, यानी कि कोई भी ऐसी क्लास हमारी एप्लीकेशन में जिसके ऊपर एंटिटी का जो वर्ड है वो पड़ा होगा, तो वो एज ए डेटाबेस में हमारी एज ए टेबल जो है वो सेव होगी या सेव आईपीएल खुद ब खुद इस चीज़ को समझ जाएगा कि भाई एंटिटी अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो यूज़र जो है वो ये चाहता है कि मैं टास्क की क्लास की जो एक अलग से अपने डेटाबेस में टेबल बनाना चाहता है या मैं बना दूँ, तो वो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा डेटाबेस के रिलेटेड, वो ऑटोमेटिकली इस एनोटेशन को देख के जो डेटाबेस में है वो एक टास्क के लिए या टास्क के स्ट्रक्चर के मुताबिक जो है वो अलग से टेबल बना देगा। तो एक टेबल में बेसिकली क्या होता है, आपके पास डिफरेंट कॉलम्स होते हैं, उनका डिफरेंट कॉलम्स की में डिफरेंट टाइप की डेटा होती है, और एक टेबल में आपको हर रो के लिए हर डेटा के लिए आपको एक डिफरेंट आईडी चाहिए होती है, जिसको हम प्राइमरी की भी कहते हैं। अगर आपने पहले से डेटाबेस पढ़ा हुआ है या उसके साथ फेमिलियर हैं तो आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइमरी की एनोटेशन। तो ये यहाँ पे क्या बता रही है, इंडिकेशन दे रही है कि जो आईडी जो हमारे पास वेरिएबल है यहाँ पर या ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे टास्क की क्लास में जो कि एक टेबल है, तो उसमें वो आईडी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यानी कि ऑटो जनरेट, यानी कि वो हर रो के लिए हर डेटा के लिए ऑटो जनरेटेड आईडी एक उसके पास होनी चाहिए, और वो आईडी जो है वो आपके पास यूनिक होनी चाहिए और प्राइमरी की के तौर पे
यूज होनी चाहिए। मतलब कि आपकी जो भी रो होगी डेटाबेस में या जो भी डेटा होगी वो आपकी आईडी के तौर पे उसको हम पहचान सकते हैं, उसको जो है आईडी के मदद से हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं। देन आपके साथ आपके पास जो है टास्क की क्लास में आपके पास स्ट्रिंग टास्क, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एक कॉलम होगा आपकी डेटाबेस में जो कि ऑटोमेटिकली आपका आरपीएल जो है वो बना देगी। तो वो टास्क का नाम देकर एक कॉलम बनाएगी जिसका डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। ठीक है, उसके बाद सेम ही हम अपनी टेबल में अगर दूसरा कोई कॉलम बनाना चाहते हैं तो जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का कॉलम बनाया कि प्राइवेट स्ट्रिंग दिस, और उसके ऊपर हमने डाल दिया कि एडोरेट कॉलम इन्फो। तो ये चीज़ यहाँ पे क्या बता रही है कि ये जो वेरिएबल है जो कि हम आगे डिक्लेयर कर रहे हैं ये हमारा जो डेटाबेस की टेबल है उसमें एज ए कॉलम यूज होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम ब्रैकेट में जो नेम इज इक्वल टू डेस्क दे रहे हैं, ये हम चाह रहे हैं कि भाई हमारे उस कॉलम का जो टेबल में नाम हो वो एज ए डेस्क सेव हो, और आगे हम अगर उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें तो हम इस नाम से जो है वो कर सकते हैं। और आगे सिर्फ आपके सिंपल सेटर और गेटर के मेथड्स हैं जो कि आपको डेटा को यानी कि अपनी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, टास्क का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए या उसकी ऑब्जेक्ट की जो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हमने वेरिएबल्स ऊपर बनाए हैं उनको यूज करने के लिए जो वो काम आएंगे। ठीक है, तो एनोटेशंस जो कि हमने अभी देखी जो कि हमारे टास्क की क्लास में यूज हो रही थी, तो हम फिर से अगर इनको देखें कि जो एंटिटी की आपने एनोटेशन देखी होगी, तो by using this annotation, Room will know that this class will be a table in the database and the table name will define the name of the table. तो पहले हमारे पास जनरली डेटाबेस में क्या होता था कि हमें टेबल्स बनानी पड़ती थी। ठीक है, और उसमें जो है फिर पहले टेबल बना के उसमें अलग से कॉलम्स बना के फिर जाके हम अपनी एप्लीकेशन में काम करते थे। लेकिन हम यहाँ पे हम डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन में जो है कोई भी हमने क्लास बना ली, उसको हमने एंटिटी का जो है वो यहाँ पे एनोटेशन बता दिया, तो वो ऑटोमेटिकली उस क्लास को देखकर उस क्लास के लिए जो है या उस क्लास की टाइप का जो है एक टेबल जो है वो डेटाबेस में बना देगा। तो एंटिटी यहाँ पर जो एनोटेशन है जो कि आपकी किसी भी क्लास के ऊपर अगर आप दे दें तो वो ऑटोमेटिकली आरपीएल या रूम जो है वो आपको उस क्लास को जो है एज ए टेबल जो है वो रेफर करेगा या यूज करेगा। और उस क्लास में अगर हमें कोई प्राइमरी की बनानी है या कोई यूनिक वेरिएबल बनाना है तो हम वहाँ पे कोई भी वेरिएबल बना के उसको जो ऊपर है उसके एनोटेशन एक डाल देंगे प्राइमरी की, तो ऑटोमेटिकली जो आरपीएल जो हमारी लाइब्रेरी है वो ऑटोमेटिकली इसको ये कर लेगी कि ये आपका एज ए प्राइमरी की वेरिएबल जो है यूज होगा, और ये आपका जो है वो रिपीट नहीं हो सकता है, ये आपका यूनिक डेटा आपकी टेबल में एज ए यूनिक डेटा सेव होगा। और उसके बाद अगर आप अपनी टेबल्स में कुछ डिफरेंट कॉलम की डेटा डालना चाह रहे हैं तो आप किसी भी सिंपल वेरिएबल के ऊपर अगर आप कॉलम इन्फो की एनोटेशन डाल देंगे तो आपका जो आरपीएल है वो ऑटोमेटिकली उसको एज ए टेबल के कॉलम के तौर पे उसको रेफर करेगा या उसको यूज करेगा, और आपकी टेबल में जो है वो ऑटोमेटिकली उस नाम का कॉलम बना देगा। तो जैसे कि हमने देखा कि ऊपर सेटर गेटर्स भी डाल रहे थे, तो आपको जो भी आप कॉलम्स बना रहे हैं उनके लिए आपको सेटर्स और गेटर्स डालने की भी ज़रूरत है, और आपको बिल्कुल वो ज़रूरी चीज़ें हैं। सो देन स्टेप नंबर 3 विच इज़ क्रिएटिंग डाओ क्लास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाओ हमारे पास इंटरफेस है जो कि हम करंट अपनी डेमो एप्लीकेशन के लिए बना रहे हैं, जिसमें हमारे पास टास्क की जो डेटा है वो रिट्रीव करने के लिए हमारे पास एक मेथड है which will be get all, ये हमें रिटर्न क्या कर रहा है, एक लिस्ट करेगा। लिस्ट किस टाइप की, यानी कि उस लिस्ट में किस टाइप की डेटा होगी, टास्क टाइप की डेटा होगी जो कि हमने पहले टास्क टेबल बनाई हुई है, टास्क जो क्लास बनाई हुई है उस टाइप की डेटा जो है वो हमारे पास डेटाबेस में रिट्रीव होके डायरेक्टली इस मेथड में और इस लिस्ट में जो है वो स्टोर हो जाएगी। तो ऊपर हमने इसे एक क्यूरी बताई हुई है, तो यानी कि जब भी इस डाओ क्लास का ये गेट ऑल मेथड कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली जो आपका रूम पर्सन लाइब्रेरी है वो आपकी ये क्यूरी परफॉर्म करके और उससे जो भी डेटा वापस आ रहा है वो आपको इस लिस्ट के फॉर्म में रिट्रीव करके आपको आपके एप्लीकेशन को दे देगा। ऐसे ही अगर हम नीचे देखें तो हमारे पास वॉइड इंसर्ट का मेथड है, डिलीट का मेथड है और अपडेट का मेथड है। तो जैसे कि मैंने कहा कि पहले जब भी हम डेटाबेसेस के साथ काम करते हैं तो वहाँ पे हमें मैन्युअली क्यूरीज लिखनी पड़ती हैं, फॉर एग्जांपल के इंसर्ट इनटू टेबल दिस टेबल और दिस इज डेटा। लेकिन यहाँ पे हमें देखें सिर्फ एक एनोटेशन से काम हो रहा है कि आपने जैसे इंसर्ट की एनोटेशन आपने यूज़ की
तो ये मेथड जब भी कॉल होगा और उसमें जो भी आप टास्क जो है वो यहाँ पे पास करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो बैकएंड पे डेटाबेस की टेबल है वो डायरेक्टली उस टास्क को जाके उसमें सेव कर देगा या इंसर्ट कर देगा, और आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्यूरीज या एक्स्ट्रा लाइंस ऑफ कोड लिखने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज बेसिकली मैजिक एंड ब्यूटी ऑफ द आरपीएल रूम पर्सनल लाइब्रेरी। वैसे ही जैसे इंसर्ट का काम हुआ, हमने एड और डिलीट यानी कि डिलीट की जो एनोटेशन यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको हमने इस मेथड के साथ कनेक्ट कर दिया। तो जब भी हमारा ये मेथड कॉल होगा तो यानी कि वो ऑटोमेटिकली वो समझ जाएगा कि ये जो टास्क हमारे पास इस मेथड में पास हो रहा है, हमें इस किस्म का जो भी टास्क हमारे पास डेटाबेस में है, हम उस चीज़ को डिलीट करना है या ऑटोमेटिकली उस पर डिलीट का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना है। तो वॉइड अपडेट ऐसे ही, तो जो भी आपके पास टास्क अभी यहाँ पे कर रहे हैं, आप उसको अपडेट करने के लिए सिंपली एक अपडेट करने के लिए आप यहाँ पे जो अपडेट का मेथड है वो आप यूज़ करेंगे। सो माय लैपटॉप बैटरी इज लो, सो आई विल जस्ट ट्राई टू रैप अप। सो यहाँ पर बेसिक डिटेल्स अबाउट डाओ। तो यहाँ पे डाओ में आपका जो बेसिक काम जो होता है वो सारा एनोटेशन बेस पे होता है, यानी कि आपकी जो डिफरेंट एनोटेशंस आपने देखी पीछे, एक टेबल को रेफर करने के लिए, एक रूम को रेफर करने के लिए, और तीसरी जो है वो आपके मेथड्स को और डाओ डाओ इंटरफेस को जो रेफर करने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट एनोटेशंस यूज होती है। तो वही एनोटेशन आपको आपके पास काम आती है आपके किसी भी इंसर्ट ऑपरेशन यानी कि कोई भी डेटा डालने के लिए किसी भी आपके डेटाबेस की टेबल में, और किसी भी डेटा को डिलीट करने के लिए या उसको रिट्रीव करने के लिए डेटाबेस में से आपके पास ये सारा जो रूम की एनोटेशंस हैं उन पे काम आता है। और देन हियर इज डेटाबेस क्लास व्हिच इज आवर स्टेप नंबर 4, कि हमारे पास रूम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो स्टेप नंबर 4 है, जिसमें हमें डेटाबेस की इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है। तो उस डेटाबेस में आपके पास कुछ मेथड्स होते हैं जो कि आपको उस सारे डेटाबेस का जो कि आपके एप्लीकेशन से कनेक्टेड है उसका इंस्टेंस आपको उठा के आपके एप्लीकेशन को दे देती है, और उस इंस्टेंस के जरिए आप अपने डेटाबेस पे कोई भी ऑपरेशन जो है वो सिंपली परफॉर्म कर सकते हैं। अब कौन से ऑपरेशन होंगे वो, तो आपके पास इनसाइड के ऑपरेशन हो सकते हैं या रिट्रीवल के ऑपरेशन होते हैं, यानी कि आप अपनी डेटा जो है वहाँ से डेटाबेस से उठा भी सकते हैं, और किसी डेटा को डिलीट करना है या वगैरह वगैरह जो भी डिफरेंट ऑपरेशन हैं वो आप आपकी डेटाबेस की क्लास के जरिए परफॉर्म कर सकते हैं। और डेटाबेस की क्लास को हम जो इंडिकेट करेंगे वो हम करेंगे डेटाबेस की एनोटेशन के हिसाब से, यानी कि कोई भी क्लास बना के अगर हम ऊपर उसके डेटाबेस का एनोटेशन डालेंगे तो उससे हमें आरपीएल को पता चल जाएगा कि ये जो आपकी क्लास है वो एज ए डेटाबेस क्लास की यूज होगी। दिस इज एग्जांपल ऑफ डेटाबेस क्लास, लाइक यहाँ पे हमने बनाई कि पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐप डेटाबेस which is extending room database which is basically we are using in this case। तो उसमें अंदर आप देखें कि आपके पास टास्क डाओ का इंटरफेस का एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपके सारे जो ज़रूरी मेथड्स हैं वो आपको फराम करेगा, जिसमें हमारे पास इंसर्ट का मेथड है और सिलेक्ट का मेथड है, और हमारे पास डिलीशन का सारे जो मेथड्स हैं वो हमारे पास टास्क डाओ में है। तो यहाँ पे हमारे पास ऐप डेटाबेस इंस्टेंस जो है ये हम जब भी हम डेटाबेस का ऑपरेशन कोई परफॉर्म करना चाह रहे होंगे, तो ये जो इंस्टेंस यहाँ पे हमने डिफाइन किया है, इस इंस्टेंस का यूज़ करके हम कोई भी ऑपरेशन जो हमारे टास्क डाओ में जो मेथड्स हैं हम उन पे परफॉर्म कर सकते हैं या डेटाबेस पे जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिक ये सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है जो कि हमें आरपीएल में करनी पड़ती है किसी भी डेटाबेस के इंस्टेंस को बनाने के लिए। यहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशन का में कॉन्टेक्स्ट होता है कि भाई हम जो डेटाबेस बना रहे हैं वो हम किस एप्लीकेशन के बना रहे हैं, तो उस एप्लीकेशन का हम कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे पास करके, और यहाँ पे आप जो टास्क डीबी देख रहे हैं ये आपका बेसिकली डेटाबेस का नाम है, जो कि यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपने डेटाबेस को। और तो जी जब भी आप डेटाबेस का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे आपको सिंपली जो है ये मेथड कॉल करना है, और वहाँ से आपको ये इंस्टेंस जो है ये रिटर्न हो जाएगा। फिर
Hi everyone. I think Muzammil is facing some kind of problem with his laptop, as he did mention that there wasn't much charge left. So we're gonna wait for 5 minutes and see if he comes back. So until then, if you guys have any questions, you can drop them down in the chat box and we'll try to answer them. Thank you very much. Yes, we've been informed that Muzammil is actually putting his laptop on charge. So if you could just wait for 2 to 3 minutes for him. Thank you. Just like I said before, you guys can list all your questions in the chat box, and just as Muzammil comes back, he will wrap up his slideshow, and then he'll answer all your questions. Thank you. Guys, I am very sorry. मेरा लैपटॉप जो है उसकी बैटरी शट डाउन हो गई थी, लेकिन आई थिंक आई विल कंटिन्यू माय सेशन थ्रू मोबाइल. Muntaha, can you please share the PPT which for shared with you? I don't have the PPT. I'll ask Samira to send. Just wait 2 seconds. Sure. Samira's loading the PPT. Don't worry. Until then, if you could answer some of the questions our attendees have listed in the chat box, that would be great. Yeah, I think someone asked me why do we access database through DAO class rather direct access. तो देखें, पहले आपने जो जनरली केसेस में होता है, जैसे कि हमारे पास जावा में अगर हम कोई भी रिलेशनल डेटाबेसेस जो है वो यूज करना चाह रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम डायरेक्टली डेटाबेस के साथ ही एक्सेस करते हैं. लेकिन डाओ यहाँ पे हमारे पास जो है वो एज ए फीचर काम कर रहा है, एज ए ब्रिज काम कर रहा है, जिसके थ्रू हम आसानी से जो है अपने ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं. अगर हम यहाँ पे मैन्युअली कर रहे होते तो यहाँ पे हमें डेटाबेस से जो डेटा आ रही है उसको भी हमें यानी कि अपने ऑब्जेक्ट्स में जो अपने हमारे पास किसी भी एप्लीकेशन में ऑब्जेक्ट्स जो प्रोग्रामिंग में होते हैं उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर उसको वहाँ से जो है हमें प्रिंट करना पड़ता है जो भी उसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना है. लेकिन डाओ जो है डायरेक्टली, जैसे कि आपने पहले भी देखा कि मेथड में से हमें डायरेक्टली डेटाबेस से डेटा उठा के हमें एक लिस्ट में डाल के दे रहा है, और सिंपली हम उस पर फिर आगे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं. ऐसे अगर हमें कोई भी चीज़ इंसर्ट करनी है तो हमें सिर्फ जो है इंसर्ट का मेथड है जो कि हमें डाओ ही फराम कर रहा है, उसमें सिर्फ हमें अपनी डेटा जो है वो पास कर देनी है और वो ऑटोमेटिकली बैकएंड जो है वो इंसर्ट की क्वेरीज या कुछ भी जो उसको ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो वहाँ पे करके और आपका जो काम है वो कर दे. तो ये जो उसके हमारे पास फायदे होते हैं डाओ के, तो इसीलिए हम जो है वो प्रेफर करते हैं कि डाओ या जो हमारे पास आरपीएल जो है हम उसका यूज करके अपने डेटाबेस के ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करें. ओके Muntaha, can you please go forward in the slides on the database one? केड़ी स्लाइड ॻाल्हाइणो आहे मुज़मिल भाउ? डेटाबेस जी स्लाइड मतलब समिला जेका साईं करंटली हली पे.
ने स्लाइड नंबर कहिड़ो हू त शेयर थी पई आहे स्क्रीन। अच्छा मां हितां खां शेयर कयां ईअं? न शेयर थियल आहे स्क्रीन, तव्हां ॾिसो। मूं वटि अलाए छो ब्लैंक पई अचे, मे बी इंटरनेट जो इशू आहे। न त मां डायरेक्टली पंहिंजी मोबाइल जी स्क्रीन बि शेयर करे सघां थो, पोइ हितां खां जेकॾहिं कयां। जी जी करे था सघो था, पर हिते त शेयर थियल आहे, ॾिसी वठो तव्हां। अच्छा मूं वटि शो न पई थिए यार। अच्छा अची वई, ठीकु आहे। सो असां हम थे डेटाबेस क्लास पे। तो देखें यहाँ पे भी एप्लीकेशन का ही काम हो रहा है। तो हम हमारे पास जो ऐप डेटाबेस की जो क्लास है, जो कि हमें बनानी है, जो कि हमें अपना इंस्टेंस जो है वो दे रही है डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। सो अगर आप ऊपर गौर से देखें तो फर्स्ट लाइन पे हम उसे एक एनोटेशन दे रहे हैं, जिसपे डेटाबेस की एनोटेशन, जिसमें हम एंटिटीज यानी कि वहाँ पे हमने बता रखी है उन एंटिटीज में से क्या मुराद है कि आपके डेटाबेस में जो है वो कौन कौन सी आपके एप्लीकेशन में वो क्लासेस हैं जो कि एज ए टेबल जो है आपके डेटाबेस में यूज होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक सिंगल क्लास ही, जो कि हमने पीछे एग्जांपल देखा टास्क क्लास का, तो इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ टास्क डॉट क्लास इसके पास कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल क्लासेस होती जो कि हम एज ए टेबल्स यूज करना चाह रहे थे, तो हम वहाँ पे सिर्फ कामा देके और डिफरेंट क्लासेस का क्लास नेम डॉट क्लास अगर दे देते, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो समझ जाता है कि हमें डेटाबेस जो वो बना रहा है, रूम की आरपीएल जो डेटाबेस बना रहा है बैकएंड पे, ऑटोमेटिकली उसमें वो एंटिटीज जो आपने यहाँ पे डिफाइन की हुई है उन चीज है वो वहाँ पे बना देता। और यहाँ पे आपने साइड में वर्जन जो बताया हुआ है वर्जन 1, यानी कि दिस इज अवर फर्स्ट वर्जन ऑफ अवर डेटाबेस, यानी कि इसमें फिलहाल पहले से कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम न्यूली इसको डेटाबेस को बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा वर्जन जो है वो 1 है। तो ऐप डेटाबेस इज बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जिसका आप बाहर जो है वो इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं बना सकते। सिर्फ आपका जो यहाँ पर इंस्टेंस या जो इसका ऐप डेटाबेस का खुद का जो ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे डिफाइन हुआ पड़ा है, सिर्फ आपको आप इसी को यूज करके जो इस पे डिफरेंट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हर आपके ऐप डेटाबेस के ऑब्जेक्ट में आपके पास एक टास्क डाओ जो इंटरफेस हमने बनाया था, उसका भी एक इंस्टेंस जो है वो वहाँ से मिल जाएगा, जिसको हम यूज करके जो उसमें जो डिफरेंट मेथड्स है इंसर्ट का, गेट ऑल का, जो कि हमें गेट ऑल मेथड जो है वो हमें डिफरेंट डेटा, सारी जो डेटाबेस से डेटा थी वो रिट्रीव करके दे रहा था। और इंसर्ट मेथड जो है वो हमें कोई भी न्यू डेटा जो है वो हमें टेबल में इंसर्ट करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो दे रहा था। और ऐसे ही जो अपडेशन और डिलीशन के जो मेथड्स है वो हमें दे रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम यानी कि पहले हम ऐप डेटाबेस को, ठीक है, यूज़ करेंगे उसका इंस्टेंस लेके, फिर उस इंस्टेंस में अंदर जो है वो टास्क डाओ का जो हमारे पास उसका ऑब्जेक्ट है, उसको हम एक्वायर करके फिर उसमें जो है डिफरेंट ऑपरेशन जो भी हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो हम कर सकते हैं। तो आई थिंक अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं समीला। समीला कैन यू प्लीज मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। जी मूव कयो आहे, तव्हां वटि छो न पियो थिए? आई स्लाइड्स थिंक नेक्स्ट स्लाइड ते तव्हांखे हू कोड जो ॿुधाईंदो हूंदो, त यानी कि मूं वटि अच्छा ठीकु आहे। असल त में 22 स्लाइड्स आहिनि, ख़तम थी वियूं हुते। ठीकु आहे, मां हाणे पंहिंजी तव्हां स्क्रीन शेयर कयां थो मोबाइल जी, ऐं मूं वटि एप्लीकेशन जेका पंहिंजी डेमो एप्लीकेशन पई आहे। मैं अभी अपनी मोबाइल पे जो है वो स्क्रीन शेयर करके आपको जो डेमो एप्लीकेशन थी, यहाँ जहाँ पे हम डेटा रिट्रीवल का जो ऑपरेशन है और जो इंसर्शन का जो ऑपरेशन है वो जो हम वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे काम कर रहा है। मैंने हालांकि आपको कोड भी दिखाना था, लेकिन बिकॉज ऑफ द इशू विद द लैपटॉप, तो वो कोड मैं अभी आपको नहीं दिखा सका, लेकिन आई विल जस्ट शेयर माय मोबाइल स्क्रीन एंड शो यू द डेमो एप्लीकेशन।
स्क्रीन विजिबल है? Yes, it's visible. Okay. So yeah, if everyone can see कि हमारे पास ये बेसिक एप्लीकेशन है जहाँ पे हम अपने कोई भी एक न्यू टास्क की जो डेटा है वो हम सेव करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, और जो कि हमारे पास पहले डेटाबेस में डेटा हमने सेव की है हम उसको भी लोड बटन के जरिए जो है वो लोड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक डेमो डेटा अगर डालें कि टास्क 1 के, तो डिस्क्रिप्शन अगर हम उसकी डालें कि दिस इज टास्क 1, ओके। तो अगर हम सेव करें तो ये हमें बता रहा है कि दिस इज सेव्ड, ओके। तो यानी कि इसने अभी सेव करने से हमारी डेटाबेस में जो है वो डेटा सेव भी कर दी, और उसको सो बेसिकली अगर मैं आपको यहाँ पे बाय वर्ड बता दूं कि सेव के पीछे जो है वो बैकएंड की जो इम्प्लीमेंटेशन वो कैसे हो रही है। तो सेव आपका बैकएंड पे जो है वो आपका ऐप डेटाबेस का जो इंस्टेंस है उसको कॉल कर रहा है, ठीक है। उस इंस्टेंस को कॉल करके फिर उस इंस्टेंस में जो उसको टास्क डाओ का जो एक ऑब्जेक्ट जो मिल रहा है उसको कॉल कर रहा है, ठीक है। और उस टास्क डाओ के ऑब्जेक्ट में सिर्फ एक जो इंसर्ट का मेथड था, जो कि हमने अपनी डाओ की क्लास में बनाया था पहले से, और जिसमें हमारे पास इंसर्ट की एनोटेशन भी थी। तो वो सिर्फ उस इंसर्ट की एनोटेशन में ये जो हमारे हमारे पास टास्क की जो डेटा है, जो कि हमारे पास टास्क का नेम है और टास्क की डिस्क्रिप्शन है, वो हम उसमें एज ए टास्क ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं। तो वो ऑटोमेटिकली बैकएंड का जो काम है, जो कि टास्क की टेबल पे क्यूरी चलाना इंसर्ट की, और उसमें वो डेटा पास करना, वो सारा काम आरपीएल जो हमारे पास रूम पर्सन लाइब्रेरी है वो खुद से ही कर रही है, और उस टास्क की जो है वो डेटा है वो वहाँ पे सेव कर रही है। तो अगर हम यहाँ पे लोड पे क्लिक करें और देखेंगे हमारे पास अगर डेटाबेस से डेटा आ रही है या नहीं आ रही, तो आपने देखा कि जो हमने अभी करंटली डेटा जो हमने सेव की थी, तो लोड पे क्लिक करने से हमारे पास उसने रिट्रीव करके हमें जो वो डेटा है वो भी शो करा दी। तो अगर हम यहाँ पे कुछ दूसरी डेटा सेव करना चाहें, तो फॉर एग्जाम्पल टास्क 2, ओके, दिस इज सेव, और लोड करें तो ओके हियर इट इज। वो अगर हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एप्लीकेशन को बंद कर दें, ओके, और हम एप्लीकेशन को फिर से खोलें, तो और खोलने के बाद अगर लोड करें तो हमारे पास सारी जो डेटाबेस में डेटा पड़ी थी वो वही हमारे पास ओल्ड डेटा जो पहले से वहाँ पे उसमें सेव्ड है वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसका मतलब कि आपके पास जो डेटाबेस का जो स्टोरेज है वो आपके मोबाइल में लोकली ही पड़ा हुआ है, और वो वहीं से कभी भी आप अपना स्टोरेज जो है वो आप आसानी से जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लोड ऑपरेशन में क्या हो रहा है, लोड ऑपरेशन पे सिर्फ आपका जो सिंपली वही है ऐप डेटाबेस का जो इंस्टेंस है वो कॉल हो रहा है। उसमें जो आपके पास टास्क डाउ का जो ऑब्जेक्ट था उसको कॉल करके, और उसमें आपके पास जो गेट ऑल का जो हमने मेथड देखा था, जो कि हमें डेटाबेस में से सारी जो डेटा की लिस्ट थी वो हमें रिट्रीव करके दे रहा था। तो सिर्फ बेसिकली लोड पे हमारा वो एक सिंगल मेथड कॉल हो रहा है, और उस सिंगल मेथड के कॉल होने की वजह से हमें जो डेटाबेस में जो भी डेटा पड़ी है वो सारा हमारे पास डेटा जो है वो एक लिस्ट के फॉर्म में जो अब हमारी एप्लीकेशन में मिल रहा है, तो वो हम सिर्फ उस लिस्ट को अपने यहाँ पे लिस्ट व्यू में, जो कि आपने पहले आई थिंक पढ़ा हुआ होगा, उसमें लिस्ट व्यू में अपनी लिस्ट को जो है वो डिस्प्ले कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो दिस इज इजी कि हमने कैसे सिंपली कुछ लाइन ऑफ कोड में हमारा इंसर्शन का वो गेट ऑल का जो ऑपरेशन है वो आसानी से परफॉर्म हो गया, और यहाँ पे हमें क्यूरीज की कोई भी जो है वो एक यानी कि टेंशन नहीं करनी पड़ी कि मे भी हमारी जो क्यूरी है वो हमारी कंपाइल टाइम पे हमने गलत तो नहीं लिख दी या समथिंग। तो ऐसे मसले जो है उनको ओवरकम करने के लिए हमारे पास रूम पर्सनल लाइब्रेरी जो हमने यूज़ की, सो इट वाज ए बेस्ट ऑप्शन। तो आई विल रिकमेंड कि अगर आप आगे आप कभी भी एसक्यूएल पे कोई भी बेसिक ऑपरेशन या कुछ भी परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो आप अपनी आरपीएल का जो आर्किटेक्चर है आप उसको इम्प्लीमेंट करें, और उसमें जो भी हमने अभी वेज डिस्कस किए कि उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। पहले कि आपको डिपेंडेंसी जो है वो ऐड करनी पड़ती हैं, और उसके बाद आपके पास डेटाबेस की जो एंटिटीज़ हैं जो कि आपके पास डेटाबेस में एज ए टेबल्स आप स्टोर करना चाह रहे हैं, वो आप उसमें पहले पहले बनाएंगे, जो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा जैसे बनाए थे। और उसके बाद आपके पास आप डाओ की एक इंटरफेस बनाएंगे, जिस डाओ के इंटरफेस में आपके पास डिफरेंट मेथड्स होंगे जो कि आप अपने थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होंगे। लाइक ये सारी डेटा के रिट्रीवल के लिए हमारे पास मेथड होगा, कोई न्यू डेटा इंसर्ट करने के लिए मेथड होगा, और अपडेशन के लिए वगैरह वगैरह जो भी आपके पास अपनी आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं
आप वो यूज करके आराम से डाओ से जो है वो काम ले सकते हैं। तो आई थिंक दिस वाज इट। अगर कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं तो आई विल जस्ट आंसर देम इन शॉर्टली। Okay, I think Asad has also answered most of the questions. So if there is any new question or complexity, please ask. I'm here for you. Otherwise, this was it. Samila, over to you. Okay, guys. So we are just dropping in our feedback form till you guys ask questions from the speaker. Please do fill the feedback form for us to know about your questions, your queries, and yeah, for your certificates as well. Thank you. Till then, you can continue asking your questions. Well, thank you, Asad, for your generous support on the back end with the attendees. आपने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस क्लियर कर ही दिए हैं, तो आई थिंक देयर विल बी नो नीड फर्दर। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं किसी के पास या कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क। एंड आई जस्ट अगेन वांट टू अपोलोजाइज फॉर द इंटरप्शन एंड प्रॉब्लम रिगार्डिंग लैपटॉप डिस्कनेक्टिविटी। वरना मैं आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में जो एप्लीकेशन का कोड था, डेमो एप्लीकेशन का जो कि हमने अभी देखी, उसका बैकएंड में आपको दिखाता और उसमें हम डिस्कस करते कि ऑपरेशन जो है वो डेटाबेस के कैसे परफॉर्म हो रहे हैं और डेटा जो है वो कैसे शो हो रही है हमारी एप्लीकेशन में। लेकिन इट्स ओके, आई थिंक दीस थिंग्स हैपन। सो आई होप you guys learned something. Thank you, Muzammil, for such an interactive session. We are so glad we invited you, and thank you for becoming a part of our Android Development Bootcamp. You were a great presenter. I hope everyone had as much fun as I did. Just to remind you all, there is a quiz after this. If you don't have any questions, you can move on to the quiz once we post the link. Thank you very much for joining us, and thanks. Quiz participants can move to the quiz link